New headphones, sir? Not really. They're very old. Looking like a new. Yeah, they were good quality for sure. Yeah. The voice quality is also pretty good. No Yes, sir. complaints. Just they were not very expensive. They were just like 300, 600 or something. Wired they are, of course, and I ordered them online. They turn out to be very good quality. If anyone want to buy headphones, that price is also approx. Uh, I think 500 to 1,000. Like, so on that price range, this headphone is good. Definitely. Absolutely. Good evening, sir. Hello, Ravi. Good evening. Evening, sir. Hey, Yogita ma'am, how are you doing? Fine, sir. Okay. What about you, sir? Yeah, I just want my students to be waiting so that, Good evening, sir. when I send the link, I can see all the students jumping on, in the class, jumping into the class. But that doesn't happen. People are trickling in one by one. It means they wait. They are not online waiting. This is one change I would like to see. I would like to see people waiting for the, message. Hello, Anshu. Good evening, sir. Good evening. Anshu, you are more relaxed in the class than you should be. What I mean, you still say good evening. I don't say good evening. I say good evening. All right. And if you don't notice it every day you hear me say good evening, and you don't notice, it means you are just too relaxed. You're not with that intention, how I can improve. That's the problem. Improvement will come, but slowly because of this. You're not hungry for that. Otherwise, why would you say good evening, sir? Do you hear me say good evening? Do I say, I'm saying right now, good evening. Good evening, Anshu. Do I talk like this earlier? Always? When you come here, do I say good evening, Anshu? I'm saying good evening, Anshu. Good evening. Good evening. Good evening. This is how I talk, or I talk good evening? How do I talk? How do I say this? Good Good evening. evening. Then why don't you notice this change in the way you say it and the way I say it? What stops you from changing? It is something that you hear every day, but you don't change. Why? Answer. Answer. I'm an Indian, right? I'm not a foreigner that you can't talk like me, right? Then why don't you notice this change? Please tell me. Hey, Kalpana. Good evening, sir. Good evening. Anshu, please answer. Yes, sir. The answer is simple. I don't pay attention, sir. The answer is I don't pay attention. And why? Because again, you're too relaxed. When you enter the class with this attitude, Anshu, then I'm going to learn new things. I'm going to learn new things, not just new rules. I'm going to learn new sounds. I'm going to learn new rhythms. Then, of course, you will learn these things. But I think you only wait to learn new rules. When I teach rules, you pay attention. I've noticed that. When I'm teaching some rules, you pay attention. But rules are not only English. English is a language. Sounds, new rhythms. So all of you, be observant. Observe. Notice, okay, the rhythm of English, the sounds of English. All these things will help. When I say sounds of English,
Notice I'm not saying sounds of English. I'm not saying it. If your ears are working fine, pay attention, close attention, be hungry, and see how you notice faster, better. You will learn so much better and faster when you pay attention like this. Grammar, I understand it will come slowly, no problems, okay? What stops you from learning sounds? I say good evening every day 10 times, Anshu. You come in here and then I keep saying to new people, good evening, and still you stick to your good evening. Are they the same? Good evening and good evening. Are they the same or different? Sound wise. Sound wise. The way they sound the same or they sound different? Different. Why? But you did never try to get get rid of that difference. You never try to sound like me. Why is that? So be hungry, be hungry. You can only learn more when you're hungry, okay? So yes. And we have already started unit 7 right here. Yes, sir. And I asked you guys to write the audio script for 7.2. Yes, sir. 1 and 2. 1 doesn't matter. It's right here. Already we did that. Basically 7.2. I want to know and read the audio script for 7.2, everybody. 7.2 is the main important thing here. And you have written the audio script too, Anshu? Yes, sir. Good job, girl. Okay, Anshu, I'm going to give you a little bit of extra attention, okay? Please read and listen and tell me you are listening and reading the same thing or different things. Notice, beta. Tape script 7.2. The good old days. Grandad, when you were a boy, did you have television? What did you hear, Anshu? When were you boy? Did you have a television? Okay, everybody, silent. Is. Grandad, when you were a boy, अच्छा वो हिंदी में क्या बोल रहा है अंशु? आप जब लड़का थे. आप जब लड़का थे और अब क्या है? अब क्या है अंशु? ओल्ड मैन. और पहले क्या थे? बच्चा. तो आप लड़का क्यों बोली? मीन्स वही. मीन्स वही. आप कभी हिंदी में किसी को बोले हो लड़का बच्चा बोलने के लिए कि जब हम मेरे पापा लड़का थे ऐसा? हाँ बोलते हैं, हम मानते हैं कि बोलते लोग. ओके, आई एग्री दैट पीपल डू यूज इट. आप बोली हो ऐसा? तो आप क्यों बोलिए इस बार, है ना? क्योंकि बॉय मतलब लड़का होता है. इससे बचना होगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है कि जो हिंदी वर्ड के हिंदी सामने से रख देनी है. ऐसा नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा. तो मुझे बताओ बेटा, जब आप कह रहे हैं जब आप बच्चे थे, तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है क्या? जब आप बच्चे थे, इसमें इस हिस्से में सवाल है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. तो बेटा यहाँ पर आपने व्हेन वर यू बॉय क्यों लिखा? जब बी वर्ब यू के पहले आता है तो ये क्या बनता है? कम अगेन सर. यू बी वर्ब के पहले, यू के पहले बी वर्ब ना बेटा, वर यू. देख रही हो तुमने लिखा यू वर और वर यू में क्या फर्क है? यू वर और वर यू में क्या फर्क है? जब बरी आ गए तो वो क्वेश्चन बन जाता क्या है. ये तो जब आपने पूछा था कि कब आप बच्चे थे, आपने पूछा ये? नहीं. तो ये क्यों लिखा? नहीं. तो फिर ये क्यों लिखा? जब आप बच्चे थे ये कैसे होगा? व्हेन वर यू बॉय कि व्हेन यू वर अ बॉय? सोच के बताओ. व्हेन यू वर अ बॉय. तो बेटा ये दिमाग क्यों नहीं चला? क्या नई चीज बताई मैंने? नहीं ना, नहीं ना. हाँ, तो क्या होना चाहिए था? व्हेन यू वर. व्हेन यू वर अ बॉय.
a boy, when you were a boy, comma, did you have a television? ये अच्छा बेटा, अगर ये फुल स्टॉप है तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? बहुत कुछ सिखाऊंगा, सब लोग सीखेगा अंशु के साथ साथ, ओके? व्हेन वर यू बॉय के बाद फुल स्टॉप है तो क्या इसका मतलब हुआ? मीन्स खत्म, लास्ट सेंटेंस। तो इसका हिंदी क्या हुआ? क्विक 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 क्विक, नर्वस ना होना, नर्वस हो जाओगी तो बिल्कुल दिमाग नहीं काम करेगा, ओके बेटा? ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, हम आपको करेक्ट कर देंगे, ओके? देयर इज नथिंग टू वरी, ओके? तो बताइए इसका क्या हिंदी होगा बेटा, व्हेन वर यू बॉय? जब तुम बच्चे थे। तो जब तुम बच्चे थे अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है बेटा, जब तुम बच्चे थे। नहीं। आगे ये तो एक हिस्सा है सेंटेंस का ना मेरे बच्चे, तो जब सेंटेंस का एक हिस्सा बोलते हैं उसका फुल स्टॉप नहीं बोलते ना। अभी तो क्यों लिखेंगे हम लोग फुल स्टॉप, यही समझने की चीज है, प्लीज समझना। दोस्तों, मेरे सारे स्टूडेंट्स, व्हेन वर यू बॉय क्वेश्चन हो सकता है कि तुम कब बच्चे थे, व्हेन वर यू अ बॉय, ठीक है? लेकिन वो तो बोल रहा है व्हेन यू वर अ बॉय, जब आप बच्चे थे टीवी था। तो व्हेन यू वर अ बॉय हिस्सा है क्वेश्चन का, राइट? व्हेन यू वर अ बॉय डिड यू हैव टेलीविजन? ठीक है? एनी प्रॉब्लम्स एनीवन? व्हेन यू वर अ बॉय डिड यू हैव टेलीविजन? अंशु, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पास गुड़िया थी, गुड़िया, खेलने वाली गुड़िया, डॉल? कैसे पूछेंगे हम तुमसे ये बात इंग्लिश में? संयुक्ता मैम से पूछ लो अंशु, आज संयुक्ता मैम। When you were a little girl, did you have a toy? Did you have a डॉल, doll? लवली संयुक्ता मैम, वेरी वेल डन। अंशु बेटा, यस आई डिड, यस आई डिड। ग्रेट बेटा, I hope you understood. Anshu, when you were a girl, did you have a Doll. doll? अंशु, अपनी मम्मी से या दादी से पूछ, मम्मी जब तुम मेरी उम्र की थी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? दादी जब तुम मेरी उम्र की थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, कैसे पूछोगे? व्हेन वर यू अरे लिटिल। बेटा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं होता ना, अब तुरंत वापस चले गए, व्हेन वर यू आप बोल रहे हैं बेटा। व्हेन वर यू मतलब सवाल हो गया ना बेटा, बच्चा यू के पहले वर्ड लगा देंगे तो ये सवाल हो जाएगा, आप पूछ रहे हो कि कब आप बच्चे थे, नहीं ना? नहीं। तो फिर वर को फिर से आप बोल रहे थे, यानी कि बोलते समय आप हड़बड़ी बोलते। व्हेन शी वाज लिटिल गर्ल। आप अपनी दादी से बात कर रहे हो, अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, इमेजिन करो बेटा। व्हेन शी वाज आप व्हेन शी मम्मी वाज। से बात कर रहे हो मेरे बच्चे, आप मम्मी से बात हाँ, कर तो रहे हो। वो मम्मी से बात कर रहे हैं तो फिर सी यूज होगा ना। किसके बारे में बात कर रहे हो मेरे बच्चे? मम्मी के बारे। मम्मी को क्या बोलते हो, आई लव शी कि आई लव यू बोलते हो मम्मी को? आई लव यू। शी क्यों नहीं बोलते? व्हेन यू वाज ए लिटिल गर्ल। अब रुक जाओ, थोड़ी देर पहले तक आप शी बोलना चाहते थे मम्मी को, मम्मी से बात करते समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि आप शी बोलना चाह रहे थे? मैं सोची मम्मी मतलब मीन्स लड़की तो यूज सी होगा ना। तो दिमाग प्रैक्टिकली नहीं चल रहा था ना, खाली थ्योरेटिकली चल रहा था, वो भी आधे अधूरे तरीके से। जबकि सामने आपने, जब मैंने आपसे पूछा कि आप मम्मी को क्या बोलोगे, तो आपने कहा आई लव यू बोलेंगे, राइट? आई लव शी बोल देंगे, मम्मी को ही बोलना है तो गुड इवनिंग, ठीक है बेटे? क्या बोलेंगे? अरे 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 अरे, यू। हाँ, रुक जाना, मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई, आई हैड टू इनवाइट समबडी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। व्हेन व्हेन यू व्हेन यू वर when you were a little girl, did you have a boyfriend? लिटिल गर्ल का बॉयफ्रेंड होता है रे लड़की? अंशु, तुम देखो तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो, तुम एक कर रही हो मेरे बच्चे, जिसका कोई सोल्यूशन, ठीक है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इन सब चीजों का, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम बहुत घबरा गई हो, नर्वस हो गई हो। No, sir. तो फिर मानो कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत खराब है फिर। हाँ?
It's good. Okay. समीर क्या कर रहे हो समीर? Good evening, sir. शमा, क्या बात है दोस्तों, वेलकम शमा, डू यू रिमेम्बर शमा? Thank you, sir. Yeah, welcome. When you, sir, when you Wait, were a girl, girl, Young girl, young. जब तुम मेरी उम्र की थी तो आप ऐसे बोल सकते थे, when you were my age, when you were my Well, age. in my of my age, not in my age. हिंदी में बोलते हैं वो, ठीक है? of my age, हाँ जी, when you were of my age, yes, simply when you were my age, when you were My when age. when you were my age. No, it's not working. Again, the same issue. Try. When you were my age, okay? जब आप मेरी उम्र के थे। तो अंशु, आप क्या क्या समझ रहे हो? आप कहते हो 1 घंटा आप देते हो, ठीक है? तो मैं चाहता हूं आप अपने 1 घंटे देने का तरीका बदल दो और सिर्फ वो करो कि क्लास में जो पढ़ाएगा रिवाइज करो। अब डेस्कटॉप और फाइल PVJ8C से कनेक्ट किया गया है। इसलिए रिकॉर्डिंग किस लिए देखते जब हो? आप What's the होमवर्क point? देते हो ना बनाने के लिए, तो वही मैं रिकॉर्डिंग Wait, देखती बेटा, हूँ। wait. अब डेस्कटॉप और फाइल PVJ8C से कनेक्ट किया गया है। यस अंशु, हाँ, जब आप होमवर्क देते हो ना सर, तो वही बनाने के लिए सेंटेंस। होमवर्क करने के लिए किसी को रिकॉर्डिंग क्यों देखना पड़ेगा? एक बार वो रिवीजन कर लेती हूँ ना, ताकि फिर सेंटेंस अगर कुछ मिस्टेक ना हो। नहीं, होमवर्क जो प्रैक्टिस बुक में मिले या कभी मेन बुक में मिले, उसको करने के लिए रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप जो सेंटेंस, एक्स्ट्रा सेंटेंस जो बताते हैं ना, उसके लिए। समझने के लिए उसको। हाँ। ठीक है, तो किसी के साथ बैठ के देखो, कभी हो सकता है संयोगिता मैम के साथ या पूर्वा के साथ, इन लोग का लॉजिक अच्छा चलता है, ठीक है? या किसके साथ और बोलूं, कल्पना के साथ अगर उसके पास समय हो, तो निशात के साथ, क्योंकि बाकी नए हैं, काशिफ के साथ, अगर अदीब के साथ अगर किसी के पास समय हो तो ओके। और याद रखना दोस्तों, ठीक है, मैं अपनी डिससेटिस्फैक्शन दिखा ही देता हूँ, मेरे को नहीं आता झूठ बोलते रहना, ठीक है ठीक है ठीक है। जब मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए, मान लो आप पहले 10 के स्पीड से चल रहे थे, आप 60 चल रहे हो, तो आप तो बहुत खुश हो गए, आप 60 चल रहे हो, 10 से बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन की 60 की जगह पे 100 होना चाहिए था, तो मैं बताऊंगा कि यार 60 सही नहीं है यार। आप खुश हो सकते हो कि कम से कम 10 से 60 बेहतर है ना, लेकिन इस जगह पे मुझे 100 की उम्मीद थी, तो 100 क्यों नहीं है? और मैं गलत नहीं लगाता, डोंट वरी, ओके? मैं टीचर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी उम्मीद लगानी चाहिए। तो अंशु, मुझे आपसे ज्यादा की उम्मीद यहाँ पर है, और इसकी मैं गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन जो आपसे नहीं होगी, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप कर सकते हैं। और 1 घंटा अगर आप देती हैं, यू सेड दैट यू गिव 1 आवर, ओके, देन इट इज डेफिनेटली डुएबल। कोई अगर क्लास के अलावा 1 घंटा बिता देता है इंग्लिश में, तो उसके खराब नहीं होनी चाहिए, फिर उसके पढ़ने के तरीके खराब हैं। क्या समझे दोस्तों? yes, फिर उसके पढ़ने के तरीके खराब हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, जब आप कोई भी चीज सुनते हो, तो क्या आप सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब सोचते हो सेंटेंस में? क्या आप नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सोचते हो? और ये नहीं सोचते तो आपका कोई काम करना बेकार है, टाइम वेस्ट करना है। मैं जब सिखाता हूं तो क्या सिखाता हूं? सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये बातें करता हूं। सब्जेक्ट और वर्ब 2 पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे, एक सब्जेक्ट पार्ट होगा और एक वर्ब पार्ट होगा। यूनिट 7 के शुरुआत में कराया मैंने, फर्स्ट डे, सारे जो 21st सेंचुरी क्विज या 20th सेंचुरी क्विज है, उसमें कराया मैंने, वही सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। अगर आप वो नहीं देखोगे तो आप किस दम पे इंग्लिश सीखोगे? इसलिए गलतियां होती रहेंगी, उटपटांग होती रहेंगी। यानी इंग्लिश का हिंदी से अगर आप कनेक्ट करके सीखते हो हिंदी को, इंग्लिश को, तो नहीं आप सीख पाओगे। ठीक है दोस्तों,
सिर्फ और सिर्फ हिंदी के कनेक्ट करने से, हिंदी से ट्रांसलेट करने से, इंग्लिश के हिंदी करने से, हिंदी के इंग्लिश करने से नहीं सीखता कोई। आपको देखना पड़ता है इंग्लिश में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उसके रूल्स टीचर ने क्या बोले हैं, टीचर की बातों को रिपीट करना दिमाग में, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो अंशु, you need a partner because perhaps you need to make some changes to the way you are learning. And there are some lovely students here who can help you. You can study with them, talk to them, find time. जो ही 1 घंटे दे रहे हो वो 1 घंटे दो, but the right way. I think some people would love to help you. Sanyogita, maybe, ma'am, or Apurva, maybe, talk to them. Okay. All right, people, let's continue. Most importantly, this is my advice to everybody. सबसे आसान काम है सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना। वो काम करके खुश हो जाने वाले लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा कि वर्ड्स कैसे अरेंज हुए हैं। आपको उसकी हिंदी नहीं जाननी है। यू वांट टू लर्न द वे द वर्ड्स हैव बीन अरेंज्ड, द लॉजिक कि वर्ड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं। और कुछ बातें एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए सुनते सुनते। इतनी बार मैं बोलता हूं, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो आप पूछ दे बीच में रोक करके मुझे कि क्या है ये जो आप बोलते हो बार बार, हमको समझ नहीं आता। आई बात सुनिए, आप बीच में रोक दे मुझे कि ये क्या बोलते रहते हो आप, एडजेक्टिव एडजेक्टिव मेरे को पल्ले नहीं पड़ता, क्या होता है ये ऐसे, ये आप बार बार बोलते हो सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। इसका मतलब जहां आपको लगे कोई बात मैं बार बार बोल रहा हूं और फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप रोक दे मुझे किसी दिन और कहें कि एक्सप्लेन करिए, मेरे को नहीं पल्ले पड़ रहा है। हाँ या ना, करना चाहिए कि नहीं ऐसा आपको? Yes. आप ऐसा Yes. करेंगे कब? जब आप एक्चुअली हंग्री है सीखने के लिए, देन यू विल डेफिनेटली ट्राई दैट। डू यू एग्री? Yes, sir. एक्सपेक्टिंग दिस, मैं इसकी उम्मीद कर रहा हूं फ्रॉम एवरीबॉडी। मैं जो बातें बार बार बोलता हूं रोज, वही बात मुझे जवाब में ना मिले तो फिर कैसा टीचर, कैसा सीखना, कैसा स्टूडेंट? मैं 5 बार हर दिन बोलूं कोई बात और फिर भी, और 3 महीने 4 महीने से 5 महीने से ये बात बोल रहा हूं, फिर भी आप रिपीट नहीं कर पाए मेरी बात, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आप मेरी बात पे ध्यान देते हैं? यू वर और वर यू, मैं कितनी बार बोला कि बी वर्ब सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन होता है और बी वर्ब सब्जेक्ट के बाद स्टेटमेंट होता है। ही इज हैप्पी स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है? अगर आपको नहीं पता चलता स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, तो जवाब देने से पहले यह पूछिए कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो। एम आई राइट? Yes, sir. हाँ, मेरे जिस भी भाषा में मेरे परेशानी हो रही है, मेरे किसी भी भाषा में परेशानी हो रही है, तो उस भाषा को सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे ना कि क्या बोलते हो आप, ये स्टेटमेंट क्या होता है। हमको समझ नहीं आता, अब कैसे डिसाइड करें कि ये स्टेटमेंट है क्या नहीं है, हमको पल्ले ही नहीं पड़ता कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो चुप रह जाना ऐसे मौके पे और अपनी प्रॉब्लम को बनाए रखना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो दिस इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। Everybody else, turn your camera on. Let's see. Granddad, when you were a boy, did you have television? Did you have television? Of course we had television. Just a second, people. Granddad, when you were a boy, did you have television? Days. Grandad, when you were a boy, did you have television? Such a simple sentence. Every day we say it 1,000 times. जब आप छोटे थे तो आपके पास ये गन था, जब आपके पास आप छोटे थे तो स्कूल जाते थे, जब आप छोटे थे तो जब आप छोटे थे कैसा होगा? When were you कि when you were? When you were. When you were. और इसके पीछे के रूल समझ लो भाई सब लोग, क्योंकि बी वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो वो सवाल हो रहा है कि कब थे, वो वेन का मीनिंग कब हो जाएगा। लेकिन अगर वेन यू वर बोल रहा है बी वर्ब यू के बाद, तो वही वेन अब कब नहीं रहा। जब। When you were a boy, did you have television? जब तुम स्कूल में थे, है ना, when you were at a school,
There are thousands of sentences possible, right, everyone? Yes, sir. Of course we had television. Of But it course. wasn't a colour TV like now. It was black and white. And were there lots and lots? Of course we had a television. It इस सेंटेंस का क्या मीनिंग तुम्हारे दिमाग ने निकाला मेरे बच्चे? We wasn't the color. Color TV. We wasn't the color. मुझे पता है इसका अंदाजा लगा सकते हो तुम हिंदी के तौर पे, लेकिन ये जो तुमने वर्ड्स लिखे हैं इसका क्या मतलब निकाले? We wasn't the color. तुम कोई एग्जाम का कितना भी प्रेशर ले लो अंशु, याद रखना जिस फील्ड को चुन लिया है ना तुमने, जिस फील्ड को चुना है, तुम्हें अगर कोई फंसाएगा कोई चीज, तुम्हें इंग्लिश फंसाएगा आगे बढ़ने से रोकेगा। तो याद रखना ये चीज। मैं कभी नहीं बोलता कि हाँ तुम अपने डिसीजन प्रायोरिटी सेट ना करो, लेकिन ऐसे ख्यालात कि भाई अभी मेरा एग्जाम जरूरी तो मैं इंग्लिश को वी वॉजंट द कलर का मतलब मुझे समझाना। जो तुमने जितनी भी इंग्लिश पढ़ी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो जरूर सीखी है, उसको यूज करके इसका मतलब निकालना, वी वॉजंट द कलर। डज इट सर मेक कलर टीवी होता है, मैं टीवी नहीं लिखी थी। डज, मेरा सवाल सुनना, वी वॉजंट द कलर, इसका कोई मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है? फिर लिखा हुआ क्यों है? ये खाली जगह छोड़ा जा सकता था कि मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा क्या बोला जा रहा है, लेकिन इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता, ये तो नहीं बोला जा सकता। प्लीज टेल मी, वी वॉजंट द कलर बोला जा सकता है ऐसा? कुछ इसका मीनिंग निकलता है दोस्तों? टू रीजंस। फर्स्ट, वी के साथ वॉजंट बोल सकते हैं? वी वॉजंट क्या बोलेंगे? We वी वर नॉट, वी वंट। we were. ठीक है संयुक्ता मैम, जो ग्रोथ आपने अपने अंदर देखी है, जो महसूस किया चेंज, उस चेंज के पीछे जो रीजनिंग चली है वो बताइए अनीश को, अंशु को, आप गाइड कर सकती है मैम। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, अब कैसे पढ़ती हैं, 2-4 दिन पढ़ाई साथ पढ़िए इनके, ठीक है ना? जब इनके समय, जब आपका समय मैच करा के कि भाई हम इस समय फ्री है, तुम इस समय फ्री हो जाओ, चलो साथ बैठ के करते हैं पढ़ाई, ठीक है? और जो रिवीजन करते हैं साथ बैठ के देखते हैं, ठीक, ये कर सकते हैं हम लोग। क्या नाम उसका, जूम पे मीटिंग करके कर सकते हैं। 40 मिनट तक चलती है एक मीटिंग, आराम से 40 मिनट, तो 40 मिनट काफी है, शेयर कर लिया। तो एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है, अपने आइडियाज शेयर करना। और फाइनली द वेट इज ओवर। बेसिक आइडिया क्या कर रहे हैं अनीश? इंटर्नशिप मीटिंग स्टार्ट हो गया। बेचारा लड़का लोग परेशान है, 2-2 चीज एक साथ पढ़ना पड़ा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ा, एक और क्लास चल रहा है। So much for your response. Now guys, let me first of all welcome you all. So welcome everyone. I hope. अनीश, एक और क्लास चल रहा है साथ साथ? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है सर, इंटर्नशिप करती है, प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। हाँ अंशु, अनीश बेटा, ये क्लास, अगर वो क्लास दोबारा रिपीट नहीं होगी, अगर वो इम्पोर्टेंट तो आप वो देख कर लो अटेंड, ये क्लास बाद में देख लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। यस बेटा, क्योंकि हम समझते हैं अगर वो क्लास नहीं अटेंड हो सकता दोबारा तो कर लेना चाहिए उसको, ये तो बाद में देख लेंगे, है ना? ठीक है अनीश? यस सर। यस। वहां भी टीचर इंग्लिश ही बोल रही है वैसे अंशु। What is he doing, sir? He's doing some engineering course, I think. Right, Anish? Manish has gone. Yes, sir. Okay. So, Sir, I will be back. yeah, sure, Kashi. So, जब उसने कहा, of course we had a television. तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, इतनी पुअर लिसनिंग, वी वाजंट द कलर, यू लाइक नाउ ब्लैक एंड व्हाइट। क्या कर रही हो अंशु बेटा? सर
8-9 बार सुने पर कुछ समझ ही नहीं आता। खाली खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो मेरे बच्चे। कम से कम ये तो नहीं होगा कि जो मीनिंगलेस बात है वो तो नहीं लिखोगे तुम। समझ रही हो मेरी कहने का मतलब? अब खाली जगह छोड़ो कि यहाँ पर नहीं समझ में आया हमको। ये बहुत पॉसिबल है अंशु कि आवाज समझ में नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये कई लोग के साथ होगा और इसका एक ही सोल्यूशन है मेरे बच्चे, खूब सुनना, एंटरटेनमेंट। गाने वाने सुनते रहने से ना इंग्लिश में ये चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के लिए इंग्लिश गाना सुनो और लिरिक्स सामने स्क्रीन पर रख के सुनो। याद रखना, ये नहीं कि गाना प्ले कर दिया और लिरिक्स नहीं देखे। कभी कभी लिरिक्स देखते रहना सामने, ठीक है, कैसे बोल रही है इस शब्द को। तो इससे धीरे धीरे आपकी आवाज समझने की क्षमता बेहतर हो जाएगी बेटे। स्टार्टिंग में सर मुझे भी दिक्कत होती थी समझने में। That's okay. That's okay. Totally not a big deal. Like I said, it is possible not to be able to understand the sounds of English. Okay? So the solution is, ज्यादा तो मुझे होती है, सुनाई भी कम देता है मुझे। Sayuktha ma'am, this is a bigger challenge for मतलब you because of your yeah. age. These are 19, 20, 24-year-old guys. You are in your 40s, right, ma'am? So Yes, yes. Mhm. it is always a more challenging, problem for you. नहीं, in audio file speaks very fastly, sir. Okay, let me tell you. Speaks very fastly. वो फास्ट नहीं बोलते हैं, हम स्लो समझते हैं। नहीं, फास्टली बोलते हैं, कहीं कहीं पे तो वर्ड ही नहीं, पता ही नहीं चलता है। वो फास्ट नहीं बोलते, हम स्लो समझते हैं। Yes, sir. Speaking It way is happened. different, sir. In Speaking that way case, sir, what I do, I just set the playback speed less, like 0.75, 0.50. Yes, Kalpana, you're smart. Yeah, I know. I don't know about it. Thank you, sir. Right. When I write the audio file, I listen only one line and I wrote that. Firstly, I listen whole audio script, and when we start writing, then sir, I listen only one line and I I write that line, and again Just like me. Just like me. I also do this type. 2 or 3 times I listen, then I write I listen one line, then I wrote, then listen one line, then I wrote this type. Good. एक एक लाइन सुन सुन के लिखती हूँ। फिर कभी कभी कोई इतना स्पीडली बोल जाते हैं, वो भी मेरे को समझ नहीं आता। And that is the good way, I think, because I realized what he want to who he wanted to tell us, like we Sometime I guess it, sir. Sometime I guess, मैं सोच गैस कर करके भी लिख लेती हूँ। आप गलत हो चाहे सही हो। I like that, संयुक्ता मैम, कि आप गेस भी करती हैं, बहुत अच्छे। दिमाग भी लगाना है कान के साथ साथ दोस्तों। संयुक्ता मैम Yes, सही। ना कि वो गेस करती हैं, वो गेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोला जा सकता है यहाँ पे, राइट संयुक्ता मैम? Yes, sir. That's so important. Very well done. ये सही क्वालिटी है संयुक्ता मैम। ठीक है, यही चीज के लिए They ऑडियो speak very fastly, sir. This is true. again I will say it is their normal speed. Okay, Hmm. it is their normal, It is their own language, na sir. it is their own language. It is their own language. So we have difficult. We have problems, we have challenges. I also face the same challenges when I listen to Spanish. Okay, I listen to Italian, I face the same problems. Are you learning Spanish? It is on pause right now, but I learned it for quite some time. And yes, I had the same, I couldn't understand the sounds very easily. लेकिन मैं आपको क्या बोलूं कि आप लोगों के समझ ना पाने की क्षमता के बारे में क्या है, आपको उन आवाजों के साथ दोस्ती करनी होगी, आज या कल हो जाए, क्योंकि आपको उन आवाजों से भाग करके नहीं मिलने वाले सोल्यूशन। बोलो दोस्ती नहीं कर रहा। Okay. I am ready to be friends, sir, but yeah, they are not ready to be. You have to go out of India now, so you have. I am. But it wasn't a colour TV like. Do you have television? Of course we had television, but it wasn't a colour TV. But it wasn't a color TV. But it wasn't a color TV.
But it wasn't a color TV. You have television? Of course we had television. But it wasn't a colour TV like now. अच्छा अंशु हेडफोन्स यूज कर रही थी? नहीं। वाह, तालियां दोस्तों, चलो तालियां। ठीक है, क्या बात है। कितनी दफे मैंने कहा आपको कि ऑडियो के काम हेडफोन्स के साथ होंगे। सर और वो मैं कोई? कंबल के अंदर वो फोन का वॉल्यूम तेज करके सुन रही थी बस। क्योंकि आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो गई ना, क्योंकि टीचर ने कहा नहीं हेडफोन, लेकिन नहीं। आपको लगा कि नहीं जरूरत नहीं हेडफोन्स की, हम कंबल के अंदर ढक लेंगे तो आवाज क्लियर हो जाएगी। आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट अनॉयड राइट नाउ। क्यों नहीं यूज करा हेडफोन्स? Why didn't you use the headphones? अंशु, सर मैं वॉल्यूम तेज करके सुन रही थी, साफ तो पता चल रहा था। दिख गया अभी? Hello, good evening, sir. Good evening, Sharma. Hey guys, sorry, but I can't handle it. Guys, how many times I've said this, that काम ऑडियो का काम करना हमें हेडफोन्स यूज करके हमें आवाजें साफ सुनाई पड़ती। कितनी बार ये बात कही मैंने आपको? एक दो बार या बहुत? कहा है कि स्पीकर से आवाज खराब हो जाती है, स्पीकर से आवाज क्लियर नहीं पता चलेगी, क्योंकि स्पीकर से आवाज दिक्कत हुआ सर, शुरू में मुझे भी दिक्कत होता था। मैंने अपने आपको कई बार स्ट्रगल करते हुए पाया, तो मैंने क्या किया, हेडफोन्स लगाया और कहा कि ये आवाज आ रही है। आपने नहीं देखा है, मैं दूसरे क्लास में जिसमें मैं बीबीसी कभी कभी प्ले करता हूँ, तो मैंने हेडफोन्स लगाया सुनने के लिए कि क्या बोला जा रहा है। क्यों? हेडफोन से आवाज क्लियर समझ आती है। दिस इज टू बैड, दिस इज टू बैड, दिस इज टू बैड। एंड दे से दे रिस्पेक्ट मी। ये लोग कह देते हैं कि आई रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? बात मानना या पैर छूना? बात मानना। बात मानना। ठीक है। हाँ, अब रियली अननोइंग। Anshu, please stop saying. Where are you? Anshu, please stop saying that you respect me. You don't. Stop saying that you respect me. You challenged my opinion, my advice. कि हम तो साफ सुन ही रहे थे, तेज सुन रहे थे, तेज आवाज आ रही थी, अच्छे से आवाज आ रही थी। तो फिर मैंने कभी तुम्हें कहा है कि ईयरफोन्स लगा के, हेडफोन्स लगा के सुनना है? ऐसा कभी कहा है, हाँ या ना? यस सर। तो तुमने किसकी बात को ज्यादा वैल्यू किया, अपनी बात को या मेरी बात को? I'm really not okay with this. I'm not sure about what I should do with you right now. You know, I think you have already given up when you have started challenging my advice. What can I say? It's like fight. It's like a fight. कि नहीं सर ये बोले हैं, लेकिन ये भी तो वैसा ही है। सर ऐसा क्यों बोलेंगे? सर का तो दिमाग खराब है, वो तो फालतू बोलते हैं, हेडफोन्स लगा लो। नो सर, आई फॉरगेट सर, सॉरी सर। It was black and white. Of course we had television. Of course we had television. Of course we had television. But it wasn't a colour TV like now. It was black and white. Like now. And were there lots and lots of channels? But it wasn't a color TV like now.
जैसे आजकल लोगों के पास होता है, जैसे अभी लोगों के पास होता है. It wasn't a color TV like now. It wasn't a color TV like now. It was black and white. And were there lots and lots of channels? Channel or channels, Kasif? There lots and lots of channel or channels, people. Two times Channels. lots of, sir. Yes. Two Lots times of lots of. channels. Channels. Were there lots and Yes, lots of channels? Were there lots and lots of channels? Lots and lots. Lots and lots and Sir, lots, lots. lots and lots of channel or channels? Channels. Lots and lots. Channels. Lots Lots and lots of channel. Channels. Channel, no, channel. I write Channel. channel. Lots of channel. Okay. Lots of boy or boys? Shabnam? Lots of boy. Channels. Lots of boy. Lots of boy. Lots and lots of boy. Lots Lots and of boys. Boys. no, lots of boy. Lots of boys. कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? क्या चलना चाहिए दिमाग में? What's the difference between लड़का और लड़के? Boy and boys? What's the difference? Boy means one ladka. Sir, boy is a singular one. and Singular. boys are plural. Singular, huh? And boys are plural. Then we Lots say is lots plural. of lots. So we say Lots boys. is we say boys ना boy. Lots तो लगे गया तो फिर boy बोलेंगे ना. नहीं. Okay, okay. Confused. No, man. Lots of boys. Sir, lots of बोलेंगे तो channel और lot of बोलेंगे तो channels. Lot और lot से की होता है. मैं जरा सा शबनम से पहले बात करूंगा. I will talk to Shabnam for a bit. Shabnam, what is the difference between Yes, sir. boy and boys? Yes. What's the difference between boy and boys? Sir, boy is a singular and boys are plural. Okay, boy is a singular noun and boys is a plural noun. Okay, Yes, sir. and what is the difference in the meaning? Sir, लड़क boy है तो लड़का और boys है तो लड़के मतलब बहुत सारे. Right. तो बॉयज तब बोलना है जब मल्टीपल की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, राइट? BOYS Yes, बॉयज sir. तब यूज करना है जब एक से ज्यादा की बात हो रही है. एक की बात हो रही होगी तो BO Boy. 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 Everybody agrees? Everybody agrees? Boys Yes. for singular and boys for Yes, plural. sir. Yes, sir. अब शबनम और संयोगिता मैम दोनों मुझे बताएं कि लॉट्स ऑफ मतलब ढेर सारा होता है? Lots of ढेर ढेर सारा लड़का होता है या Yes, sir. लड़की Lots लड़की? of ढेर एक सारा. लड़का होता है या एक से ज्यादा लड़का होता है? ढेर सारे. ढेर सारा ज्यादा लड़का हुआ ना. तो फिर आप Sir, बॉयज lots क्यों नहीं of बोलना Lots of चाहते? तो boys. boy बोलेंगे. Lots of boy. No. Lots of boy. वही तो Lots of आप boys. बोल रही है. of boy. सब लोग चुप हो Boy जाएं, होगा. सब लोग चुप हो जाएं, Lots of सिर्फ boy. मुझे बात करने दें प्लीज. मैं सहयोगिता मैम और शबनम के दिमाग में घुसना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि कैसे ये गलतियां करते हैं ये. ठीक है, क्योंकि आप मुझे बताएं जब आप खुद नहीं sir, कहते हो. lots of boys. नहीं, lots of boy होगा. Boy. BOY. I शबनम, want to say. You? शबनम, Lots of boy. Yes, sir. कौन सा सही? Lots of boys. बॉय की बॉयज? फाइनल कर लो So आप. lots of ठीक है, lots कंफ्यूजन है. of boys होगा sir. अब आप वापस No आते हैं. sir. अभी थोड़ा देर तक आप बॉय कर Lots रहे of boy. थे. ठीक है, अब बॉय बॉयज दोनों बोल रहे हैं. चलिए रुक जाते हैं और लॉजिकली सोचते, बहुत आसान है. ओके गाइस, Yes. sir. बॉय हम इंग्लिश में तब बोलते हैं जब हम एक की बात करते हैं. ठीक है, और जब एक से ज्यादा लड़के Yes, हो sir. जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, तो बॉयज बोलना पड़ता है हमें. जैसे अगर हमें बोलना है दो लड़के आए मेरे घर, तो 2 boy came और 2 boys came, which is correct? Yes, sir. Two Boy. boys came.
Two boys came. Two boys. अपूर्वा, मैंने आपसे नहीं पूछा, Two प्लीज boys को came. शबनम और संयोगिता को आंसर करने दीजिएगा, संयोगिता मैम को और शबनम को प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके कोई क्लासमेट ऐसे बेसिक चीज में उलझ जाए तो आप उनके सामने जवाब ना दें, उनको एकदम कंफर्टेबल होकर समझने दें, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट था जो इनके दिमाग में नहीं घुसा था, जो इतना परेशान किया उनको। ठीक है, तो आज के बाद हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म करना कि कोई भी सिंगुलर नाउन तब यूज होता है जब एक की बात होती है, और प्लूरल नाउन तब यूज होता है जब एक से ज्यादा की बात होती है। तो मुझे ये पूछना है, लॉट्स ऑफ में आपके सामने एक चेहरा दिख रहा है, ढेर सारे चेहरे दिख रहे हैं? ढेर सारे। तो ढेर सारे तो बहुत सारे। बॉय कैसे है फिर वो? क्योंकि बॉय तो सिंगुलर होता है। नहीं सर, बॉय। नहीं होता मैम? लॉट्स ऑफ बॉयज। बॉय तो एक होता है, तो आपके जब ढेर सारे चेहरे दिख रहे तो बॉय कैसे बोली हूँ आप? नो सर, कंफ्यूजिंग सर। लॉट्स ऑफ बॉयज होगा। आपको बेसिक आइडिया समझना है सारे लोगों को, ठीक है दोस्तों? कि ओके जब सर। एक है तो यस सिंगुलर सर, है, यस सर। एक से ज्यादा है तो रुक जाओ ओके यहाँ। सर। प्लूरल। कंफ्यूजिंग सर, कंफ्यूज। कंफ्यूज वर्ड छोड़िए और मेरी बात सुनेंगे आप, कि अगर एक कोई चीज है तो सिंगुलर होता है, आप सब जानते हो ना? तो आपका कंफ्यूजन किस चीज से आता है? जब वहां ढेर सारे हैं तो आप क्यों बॉय बोलना चाहते हो? जब वो बॉय एक होता है तो क्यों बॉय बोलना चाहते हो? खाली ये जवाब दो, क्यों? ढेर सारे लड़के। लड़के, अब हिंदी नहीं कर रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एक से ज्यादा चेहरा दिख रहा है तो बॉय क्यों बोलना चाहते हो? जब खुद आप जानते हो बॉय मतलब एक होता है, आपको ढेर सारे चेहरे दिख रहे हैं, तो वहां पर आप Yes, एक sir, yes, क्यों बोलना चाहते हो? बॉय क्यों बोलना चाहते हो? बॉय क्यों बोलना चाहते हो? ये पूछ रहा हूँ संयुक्ता मैम। यस सर, आई अंडरस्टैंड सर। सर वो ना मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ Yes, चली sir. गई थी, यस और यस में कंफ्यूज हो गई थी। अभी आते हैं आपके पास, संयुक्ता मैम को क्लियर कर दे। संयुक्ता नहीं, मैम समझ आप गया समझ सर। गई, ढेर आप समझ सारे गई, लड़के। आप समझ गई हैं? और यस खाली यस। खाली हिंदी नहीं, खाली हिंदी नहीं, आगे कभी आई भी कंफ्यूज्ड है। यस सर। सिंगुलर नाउन यूज करेंगे जब एक की बात हो रही होगी, वो और जब तो एक से मुझे ज्यादा की पता बात है। होगी तो प्लूरल नाउन Yes, बोलना sir. ही पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड ना सर कि लॉर्ड्स तो लगा है तो फिर बॉय ही होना चाहिए। अच्छा ढेर ठीक सारे है, लड़के मैं समझ रहा हूँ, यही मैं तो समझ रहा हूँ, आप Yes, ये sir. सोचिए, मैं समझ रहा हूँ, आप ये सोचिए, अब मुझे जवाब दीजिएगा। आपने ये सोचते समय ये क्यों नहीं पूछा कि बॉय और बॉयज क्यों होता है? नहीं, वो तो पता ही है, यहाँ कंफ्यूज हो गई थी। प्लूरल है कि जब भी एक से ज्यादा की बात होगी तो प्लूरल यूज करना होगा। दोस्तों दिमाग में डालो, जब भी एक से ज्यादा की बात होगी तो प्लूरल यूज करेंगे, हाँ या ना? इसलिए यस प्लूरल यस फॉर्म है। यस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पहले क्या लिखा है नहीं लिखा है। अगर हमारे जहन में तस्वीर एक से ज्यादा की उभर रही है तो हर हाल में हमें क्या यूज करना है दोस्तों? बॉयज। प्लूरल। खाली एस बॉयज लगाना। नहीं, प्लूरल। खाली बॉयज नहीं, प्लूरल। कोई भी प्लूरल नाउन प्लूरल। यस। जब एक से ज्यादा की बात होगी तो प्लूरल ही बोलना पड़ेगा। यस यस। उसके पहले क्या Yes, लगा है sir. डजंट मैटर। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट सुने जिन्होंने कहा 5 बॉय बोलिए, मैंने कहा ऐसा क्यों? नहीं, 5 तो आप पहले ही बता दिए ना, तो आप क्यों बॉयज करें? अब ये भी वही सही Yes, जवाब है। अरे भाई बॉय Five मतलब boys एक, only. तो अगर आपने एक से ज्यादा बोला है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? बॉयज बचा, ऑप्शन है ही नहीं बॉय एक से ज्यादा के लिए। तो 5 के बाद आप बॉय बोल ही नहीं सकते, अलॉट के बाद, अलॉट ऑफ के बाद बॉय बोल ही नहीं सकते, अलॉट ऑफ बॉयज। अब बात वापस आते हैं शबनम आपके क्वेश्चन Yes, पे। sir. आपका वो प्रेजेंट सिंपल क्या बोली आप? नहीं सर, वो तिकड़ी जो बताया ना वो उस पे कंफ्यूज हो गई थी कि वो एस या एस लगा तो आगे V1 ही लगेगा, बट यहाँ इधर पे पर चैनल तो कौन V1 सा नहीं है, ये तो नाउन है। यही तो Yes. ये तो नाउन है, Yes, इसके sir. पीछे कहाँ से वर्ब की कहानी आ गई? राइट? इसलिए से हड़बड़ा गया था सर। ए लॉट ऑफ A lot of बॉयज। channels. ए लॉट ऑफ चैनल और चैनल्स। Channels. चैनल। सिंगुलर या प्लूरल शबनम? प्लूरल। Plural. प्लूरल सर, प्लूरल। अरे कल्पना, कंट्रोल यार, कम ऑन कल्पना, आर यू कंफ्यूज्ड एट ऑल कल्पना अबाउट दिस? व्हाई आर यू आंसरिंग? टेल मी। You Sir, want sorry, sir. Sorry, sir. I have put my phone in front of I am doing cooking, sir. I am only concentrating on your voice, sir.
Okay, I understand. But point Sorry, I'm muting, sir. point Sorry. is something that everybody will understand. कभी कभी आपके क्लासमेट्स कभी ऐसे लग जाते हैं, कभी आप भी हो सकते हैं उनमें से, राइट? तो उनको पूरा समय देकर समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा आइडिया दिमाग में आया, सिंगुलर प्लूरल जानते हैं फिर भी बोलेंगे a lot of boy। और संयुक्ता मैम तो इतनी कॉन्फिडेंट थी, बॉय कॉन्फिडेंस होगा। नहीं है सर, हम तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो उसके पीछे की वजह को हालांकि मैं रिवाइज करती हूँ सर, पुराने कॉपी में कभी बैठ के पलट के ऐसे देखते मैं रहती हूँ, आपको पढ़ती रहती कभी हूँ। डाउट नहीं करूंगा आपके हार्ड वर्क के लेकिन लिए। मतलब पूरा प्लीज अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पता प्लीज नहीं क्या प्लीज बात है। योगिता मैम प्लीज डोंट डिफेंड योरसेल्फ, क्योंकि मैं आपको कभी अटैक नहीं कर सकता। यू आर एन अमेजिंग स्टूडेंट, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं उस बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा आपकी वीकनेस, उसको डिफेंसिव तरीके से मत लीजिएगा दोस्तों कभी भी। मुझे आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ गलत थी, मैं आपको बताता हूँ। यस सर, यस। आप सिंगुलर प्लूरल आइडिया सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, इस बात को फील नहीं करते हैं कि जैसे मेरे सामने 2 चेयर की तस्वीर दिखेगी तो हम चेयर नहीं बोल सकते। क्या समझे? चेयर्स। क्या बोलना पड़ जाएगा हमें? यस सर, चेयर्स ही बोलेंगे। चाहे 2 चेयर्स। लगा हो चाहे 2 ना लगा हो, चेयर्स ही बोलना पड़ेगा। 2 दिख रही है ना, अब चेयर कैसे बोल दें? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 2 बोल रहे हैं कि 2 नहीं बोल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बताने से ये पता चलता है कि वो 2 है, खाली चेयर्स बोलने से 1 से ज्यादा पता चलता है, ये नहीं पता चलता कि 2 है कि 3 है कि 5 है कि 500 है। तो 2 बोलने से वो डेफिनिट हो जाता है कि 2 है, लेकिन वो 1 से ज्यादा है, इसलिए बोलना क्या पड़ेगा? चेयर्स, 2 चेयर्स। गॉट इट? तो कभी अपने आप को दोबारा इस बारे में कंफ्यूज मत होने देना कि उसके पहले क्या लगा है। पॉइंट शबनम, SES वाला मामला आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वर्ब की बात ही नहीं है, तो दैट्स नॉनसेंस। ठीक है? यस सर। और सुना जाए, और सुना जाए। यस सर। There is no difference between a lot and lots. There is no difference between a lot and lots. For example, you can say a lot of boys, and is equal to lots of boys. Lots of boys, yes sir. A lot of boys is the same as lots of boys. A lot of money, a lot of money is the same as lots of money. The lots of money, yes sir. नहीं, आप हड़बड़ा रही, ध्यान नहीं दे पा रही। A lot of money is the same as lots of money. यस पहले भी बताए हैं सर आप। A lot of money is the same as lots of money. Okay? Yes sir. Okay. Sir, Yes, Kalpana. in that way, I know, but I don't know the logic. If I ask, is there any chair? Why I ask, is there any chair? You're wrong. You're wrong. You're wrong. You're wrong. Chairs. Let me explain. You were not there perhaps, so I can help you. Okay, everybody. अगर मुझे पूछना है कि कमरे में कोई चेयर वेयर है क्या, कैसे पूछना चाहिए? अपूर्वा आप आ सकती है इस क्वेश्चन का जवाब देने। एनी का जो यूज है वो प्लूरल में होता है। ओके संयुक्ता मैम। अपूर्वा अब आप आंसर करिए मुझे इस सवाल में, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप आंसर करें। आप पढ़ाए। यस अपूर्वा। Sir, there is any chair in the क्लास रूम में कोई चेयर वेयर है, कैसे पूछेंगे? There were any chair in the room? No sir, there is. Is There there is any any chairs in the room? Yes. Is there any chair in the room? Okay, so everybody listen. जब भी ऐसे सवाल आए तो जैसे सम के बाद आप हमेशा प्लूरल लगाते हो ना, कैसे बोलोगे? देयर आर सम चेयर्स कि देयर इज सम चेयर, क्या कौन सा सही है? There are some chairs. There are some chairs. some chairs. बस खाली ध्यान रखना कि सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है और क्वेश्चन के लिए एनी बोलना पड़ेगा और पूछ देंगे आर देयर एनी चेयर्स In the room. आर देयर एनी चेयर्स Chair in the room. ऑलराइट एवरीवन, व्हाट्स द सेंटेंस? आर Yes. देयर Are there There any chairs? chair in the room. Are there any Are there chairs? chair in the room? और क्वेश्चन फॉर्म में और निगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है। यस संगीता मैम, दैट्स राइट।
Are there any chairs? Are there any chairs? Are there any chairs? Yes. Are there any chairs? Okay. So ये बच्चा है ना, बच्चे का तरीका सुनिए. Lots and lots of chocolates, lots and lots of channels. ये बच्चे का बोलने का तरीका. Lots and lots. बच्चे से बात करते हैं दोस्तों, ठीक है. A lot of की जगह क्या बोलते हैं बच्चे कई बार? Lots and lots of. अब एक क्या है, छोटा बच्चा पूछेगा कि आपके पास बहुत फ्रेंड्स हैं क्या अंकल? डू यू हैव Lots of friends. Lots of friends. lots and lots of friends? Lots and lots. ये बच्चे के बोलने का तरीका है, बचपना वाला तरीका. Lots and lots. वो छोटा बच्चा है ना, Tommy is a small boy, right? So he is talking to his granddad and granddad, were there lots and lots of channels? Were there lots and lots of channels? अपूर्वा, आपने क्या सीखा था इस सवाल से? जब आपने देखा वर देयर, तो जब मैंने आपसे पूछा तो आपने देयर कैसे बोल दिया पहले? जब मैंने आपसे सर पूछा, हाँ वर देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैनल सवाल पूछ रहा है, तो बी वर्ब पहले होगा कि सब्जेक्ट पहले होगा मेरे बच्चे? हाँ सर, बी वर्ब पहले होगा सर. राइट, तो फिर लगाए कि नहीं, है ना, लगाना चाहिए ना. वर Yes, देयर yes. पास्ट में और Were प्रेजेंट there में. आर देयर एनी are चेयर? there are there any chairs in the room? राइट. Let's continue, shall we? Were Yes. there lots and lots of channels? Yes. Kashif, make the correction. Were there lots and lots of channels? बात खत्म हो गई, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. खत्म हो गई बात. अब क्यों कॉमा दिया है? कॉमा क्यों दे रखा है? When will you guys understand कि बात खत्म हो गई? Were there lots and lots of channels? Yes, I did. Question mark. करेक्शन करना शुरू करिए, एडिटिंग पे जाइए, वहां पर चैनल को चैनल्स करिए. आफ्टर कॉमा पुट अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क. Were there lots and lots of channels? Lots and lots, not lots of lots. Lots and lots. Lots and lots. क्योंकि भाषा है ये. बड़े लोग बोलते हैं lot of, lots of, lots and lots. Channels. Actually, please make the correction. क्वेश्चन मार्क. भाई आप लोग को कब समझाएगा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है? ये एसेंस नहीं है आपके अंदर कि बात पूरी हुई है कि नहीं है? Hello, sir. यस बेटा. Sir, यस. sir, I am confused where use comma, full stop, when I. बहुत अच्छे. जब आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप एक फुल स्टॉप देते हो, अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है. ओके, बात खत्म हो गई. जैसे मैं आपसे नाराज हूं, फुल स्टॉप. हिंदी में बताता हूं ताकि पता चले, ठीक है? मैं आपसे नाराज हूं, फुल स्टॉप. आपने मुझे कल कॉल नहीं किया, फुल स्टॉप. मैं आपके कॉल का इंतजार करता रहा, फुल स्टॉप. आपने मुझसे क्यों कहा था कि आप कॉल करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवाल है. आपने क्यों कहा था कि आप मुझे कॉल करेंगी, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, राइट. आगे सुनिए. क्या आप मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? क्वेश्चन मार्क. अगर ये सवाल है तो. लेकिन कभी कभी ये सब लाइन हम ऐसे ही बोलते हैं, कुछ पूछने का इरादा नहीं है, बस ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? तो वहां पर एक्सक्लेमेशन का मार्क दे सकते हैं. किस चीज का मार्क दे सकते हैं? क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है, खाली आपको ऐसे ही. इसको रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं. क्या आप मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं? मतलब पूछ नहीं रहे हैं, मतलब हमको लगता है कि यही बात है, बोलने का तरीका है. रिटोरिक क्वेश्चन को कहते हैं. आप लोग समझ रहे दोस्तों? क्या फिर आपने ऐसा बोला है कभी, आपकी बेटी नहीं हूं? कभी कभी ऐसा बोला होगा कभी घर पर, परिवार में कोई ऐसा सवाल? देखो कोई हुई थी कहीं और, जब मैंने बोला तो अचानक से वापस आई, लड़की मैंने सुना आपने बोला कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? तो फिर ऐसे कैसे झटका लगा तुम्हें? हाँ, एकदम सर ऐसे. आई फील बैड, सर आई फील बैड टुडे सर.
हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई कैन, मेरे को इतना बुरा लगा तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें अंशु, आई जस्ट फेल्ट सो बैड टुडे। Yes, sir. It's my mistake, sir. Sorry. Okay. You're a sweet girl, I know, okay? But I got really annoyed, so annoyed today. I can't tell you. I've never Yes, felt sir. annoyed with you. Yes, sir. ने कहा क्या कि सर आवाज लाउड थी ना, तो मैंने सोचा ठीक है। ने कहा वाह, टीचर की बात पहले नहीं, अब अपनी राय रखी जाएगी। मैंने कहा है कि ऑडियो फाइल जब भी सुनो तो ईयरफोन्स लगा लो, आवाज क्लियर आती है। मैं तुम्हें इतना बता दूं अंशु कि जब मुझे समझ नहीं आती ना आवाज, तो मैं हेडफोन्स लगाता हूँ समझने के लिए बेहतर। कई बार मैंने स्टूडेंट्स के सामने किया है, अच्छा सुनने दो, गौर से सुनने दो, बिकॉज आपको आवाज स्पीकर से नहीं आती क्लियर, दैट्स इट। आप सुन के देखना ना, सब समझ में आने लग जाएगा हेडफोन्स में। ओके, वेयर वर वी, ओके। कई बार ना ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें जवाब नहीं चाहिए होता है, तो वो वहां पर क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं और एक्सक्लेमेशन भी दे सकते हैं। तुम यहां इसके बाद क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन। राइट, तो पहले ये चीज क्लियर हो गई, वेयर टू यूज फुल स्टॉप, वेयर टू यूज क्वेश्चन मार्क एंड वेयर टू यूज एक्सक्लेमेशन। अरे कितने सुंदर फूल हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन। तुम कितने फूल लाए हो? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन। अगली बार बोल तू क्वेश्चन, पैसा चार्ज कर देंगे, फाइन कर देंगे। बोल तू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन, सारा दुनिया मेरा काम को मुश्किल करने में पड़ा है, ठीक है? इसके सारे लोग जो है तुम्हारे स्कूल कॉलेज के, सब क्वेश्चन बोल बोल के तुम्हें क्वेश्चन की आदत डलवा दिए। अब मेरे को बोलता है कि प्रोनाउंसिएशन सही करो। मतलब समझ रहे हो? दुनिया मिलके मेरे बगीचे में गंदगी फेंके और मुझे कहे कि सुंदर बगीचा बनाओ, ये क्या मतलब है भाई? सुंदर रहता तो आते हैं क्यों सर? ए भाई, ऐसा करेगा तू? ऐसा जवाब देगा मेरे को? ऐसा कैसे चलेगा भाई? अरे क्वेश्चन मार्क, मेरे को सुनते हो बोलते हुए क्वेश्चन ना, फिर क्यों गौर नहीं करते कि सर क्वेश्चन बोलते हैं, हम क्वेश्चन बोलते, गौर क्यों नहीं करते तुम? क्वेश्चन। सर मुझे लगता ही नहीं कि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन बोलती हूँ, इसलिए ध्यान नहीं देती हूँ। तो मीन्स फील होता है कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये चीज को लगता है। तो तुम मेरा कि और जो अपना मैं फर्क तो महसूस कर सकते हो, तो गलत कैसे नहीं है? जो Yes, मेरा sir. तुम्हारा फर्क है, तो या तो हम सही या तो तुम सही, दोनों में से एक ही सही होंगे ना। तो तुम गलत नहीं हो तो फिर कैसे सही, मेरा से अलग कैसे है फिर? हाँ, समझने वाली बात है। ओके फाइन, तो हाउ मेनी, तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, वर देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैनल्स। और बेटा जब बात पूरी नहीं हुई है, एक्स्ट्रा आइडिया डालना है तो कॉमा दे के एक्स्ट्रा आइडिया डालेंगे, हम सिखा देंगे वो, ठीक है? सब निशात बेटा, आई टेल यू, Yes, ओके? sir. जब बात पूरी नहीं Okay, हुई है, sir. अब एक बात हुई लेकिन उसी में और बात जोड़नी है, पूरी नहीं हुई है, ठीक है? तो वहां पर हम कॉमा देते हैं, ठीक है? गौर करना है यहाँ पे। अब भी है, वर देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैनल्स, क्वेश्चन मार्क भाई पूछ रहा है वो, एक्सक्लेमेशन क्यों दिया? अभी तक नहीं समझा ये बच्चा। एक्सक्लेमेशन इसमें क्या है? पूछ रहा है कि ढेर सारे चैनल थे, वर देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैनल्स, हाउ मेनी टीवी चैनल्स वर देयर? दो अलग अलग सवाल हैं। वर देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैनल्स, हाउ मेनी टीवी चैनल्स वर देयर? ढेर सारे चैनल्स थे क्या? कितने चैनल्स थे? How many TV channels were there? फिर देखो इसने लिखा हाउ मेनी टीवी चैनल। चैनल है तो ये वर कैसे हुआ भाई? काशिफ, प्लूरल कैसे हुआ? चैनल के साथ प्लूरल कैसे लगा? तो जब आपका दिमाग इन छोटी चीजों को अगर नहीं गौर करेगा तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ? तुम ही बताओ मुझे काशिफ, क्या ही बता सकता हूँ, क्या ही बोल सकता हूँ मैं? Only two, but that was enough. We loved it. Only two, but that was enough. We loved it, but that was enough. Only two, but that was enough. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आप बट वाला वर्ड, बट के पहले कॉमा देखते हैं, only two comma small but that was enough. We loved it. ये that was enough के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए।
क्यों? बात हो गई, खत्म, दैट वाज इनफ, फुल स्टॉप। वी लव्ड इट, एक्सक्लेमेशन भी दे सकते हैं, फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, ये भी ठीक है, चलेगा। हाँ, कहाँ पे? वो फुल स्टॉप लग रहा है, ओनली 2 कॉमा, हाँ जी सही है, ओनली 2 कॉमा स्मॉल b, बट दैट वाज इनफ। ओके, वी लव्ड इट। हालांकि ये भी तरीका है, मैं बता दूं, ये भी तरीका है लिखने का, गलत नहीं है। बट आफ्टर इनफ फुल स्टॉप, वी लव्ड इट, फुल स्टॉप। And there weren't programs all day long, nothing. अच्छा, सुनना सारे लोग, क्या बोला जा रहा है? ऑडियो फाइल्स लिखने का जो आइडिया है, Only 2, but that was enough. We loved it. And there weren't programs all. and there one program, we watch programs थोड़ी बोला उसने, लेकिन ये कम सेंस बना दिया इसने, ठीक है। अच्छा बता ना, अच्छा काशिफ, we watch programs all day long, फिर nothing in the morning, nothing in the afternoon का क्या कनेक्शन है? समझ में नहीं आया सर। ठीक है, ईयरफोन्स लगा के नहीं सुन रहे थे ना ऑडियो फाइल? नहीं सर, टाइम नहीं है ना, ड्राइविंग करते हुए टाइपिंग करते हैं। ठीक है, जब आप लोग अपना बेस्ट दे के आइएगा तो फिर मैं आपके करेक्शन पे ध्यान दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा करेक्शन पे ध्यान। जिसने अपना बेस्ट दिया, जो जो एक्सक्यूज देगा, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, तो खराब काम का कोई ये नहीं होता है, उसको देखा नहीं जाता है खराब। जो अपने अच्छा किया, अब उसमें क्या गलती रह गई वो देखा। जो आप मानते ही कि खराब किया आपने, तो फिर आप ही पहले सही करो, ठीक है। अनीश, आपने ऑडियो फाइल कैसे सुना? ऑडियो फाइल कैसे सुना? और ईयरफोन पे बड्स लगा के सर, ईयरफोन। चलिए देखते हैं बेटा, पूरा दिन यूज करते हैं सर। बहुत बढ़िया। थोड़ा बेसिक पर ध्यान दो अनीश, मेरी बातों जब समझाता हूँ ना, मेरी बातों को एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव ओके है। सर, थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता सर, क्योंकि प्लेसमेंट का ट्रेनिंग चालू है फिर। राइट राइट, मैं समझ सकता हूँ अनीश, कोई बात नहीं। बट मैं कोशिश करता हूँ सर। बट आई वॉज इनफ, नो, आई वॉज इनफ मतलब हो गया मैं काफी था। मैं काफी था, मैं का क्या बनता है इससे, इस बात का सेंस क्या बनता है? मैं काफी था, इट वॉज इनफ, इट वॉज इनफ, we loved it, and there weren't programs all day long, there weren't programs all day long, there weren't programs all day long, program दिन भर नहीं होते थे, there weren't programs all day long, There one program. एक गौर करिएगा, it was enough, only 2, but it was enough। कितने चैनल? 2 ही थे, लेकिन काफी थे, loved it, we loved it, and there weren't programs all day long, Oh, there one program. there weren't programs all day long, nothing in the morning and nothing in the afternoon, All day long, nothing in the morning and nothing in the afternoon. तो हम लोग को क्या मैसेज दिया? हम लोग को मैसेज आया, there weren't programs all day long, there weren't programs all day long, दिन भर प्रोग्राम नहीं होता था, there weren't programs all day long, nothing in the morning and nothing in the afternoon. It means there were no programs in the morning and there were no programs in the afternoon, right? वो बात को सुन के अपने शब्दों में भी समझना है कि grandpa is saying that there were not programs in the morning and there weren't programs in the afternoon. Programs started in the evening. There weren't programs all day long. आप किसी को बोलना चाहते हैं कि विनय सर का क्लास सुबह से शाम तक चलता है, इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आप बोल सकते हैं हाँ या ना। स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न जो लिखा है, there weren't programs all day long, तो आप इसको स्ट्रक्चर को यूज करते हुए कुछ तब्दीलियां करके आप ये लाइन बोल सकते हैं कि विनय सर का क्लास दिन भर चलता है। Vinay sir programs all day long. Vinay sir classes run all the day. All day long. All day long. All day long. Yeah. Classes. You're talking to a student, you're talking to a student and you're telling him about this class, okay? तो आप उसको बताए, तो उसने पूछा कब कब क्लास चलता है, तो दिन भर क्लास चलता है। Vinay sir classes running all the day. All day long. All day long.
फ्लो को गौर करो, फ्लो को गौर करो दोस्तों, तोता नहीं बनना है, फ्लो को गौर करना है, ठीक है। कब कब क्लास चलता है? अरे दिन भर क्लास चलता है। There are classes all day long. Sir, classes all day long. There are classes all day long. All day long. मैंने रात भर टीवी देखी। Watch I television watch the TV all all day, night. all night. हाँ, All night. अब चाहे तो लॉन्ग को ड्रॉप भी कर सकता है। वॉच टीवी ऑल नाइट। Oh no! What time did programs begin? Oh no! What time did programs begin? Easy question. What time did programs begin? You can see the subject verb. Did programs begin? Yes, sir. At 4:30 when At 4:30 when children's TV started. children's TV started. इसकी हिंदी करेंगे सब लोग। 4:30 में जब टीवी बच्चे स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू कर। टीवी स्टार्ट करते हैं 4:30 में। संयुक्ता मैम हड़बड़ा जाती है थोड़ी सी कभी कभी, बहुत आसानी ऐसी गलतियां करती जो नहीं उम्मीद करता मैं। When children's TV started. खोलते हैं बच्चे, टीवी खोलते हैं। कैसे हो ऐसा हो जाएगा मैम? आप वर्ड ऑर्डर को वैल्यू नहीं कर रही हैं। जब आप बोलना चाहती है बच्चे टीवी चालू करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन स्टार्ट टीवी की चिल्ड्रन टीवी स्टार्ट। ओके बोलो। I think program related to children. Okay, yes. Again, Apurva. Very easy, right? Very easy. The only thing is ये जो गलती हुई, ये बड़ी बात हो गई कि उन्होंने कहा चिल्ड्रन स्टार्ट तो बच्चे टीवी स्टार्ट करते थे। अच्छा मैम, अगर मैं कहूँ मैं आम खाता हूँ तो आई मैंगो ईट। आई ईट मैंगो सर। कहाँ है मैंगो, कहाँ है फिर? लास्ट में। तो टीवी स्टार्ट होने के बाद में आएगा कि स्टार्ट के पहले आएगा? बच्चे टीवी स्टार्ट के बाद टीवी स्टार्ट के बाद में होगा। स्टार्ट लिखा क्या है? लिखा क्या है वहाँ? At 4:30 when children TV started. इसका क्या मतलब निकालेंगे? जब बच्चे टीवी स्टार्ट करते थे 4:30 में। अभी भी वही बोले जा रही हैं आप, अभी भी वही बोले जा रही हैं। चलिए ठीक है, आप मुझे फिर से बताते हैं। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ वही है, ऑब्जर्व नहीं करना। सब लोग की एक ही प्रॉब्लम होगी, आप सोच के बैठ जाते हो एक ट्रांसलेशन और आप ऑब्जर्व नहीं करते। आपको 3 सेंटेंस दूंगा हिंदी में, बोलिए मैंने टीवी स्टार्ट किया। एवरीबॉडी साइलेंट, इट्स ओनली अरे बाबा ओनली संयुक्ता मैम। संयुक्ता मैम, मैंने टीवी स्टार्ट किया। आई स्टार्ट टीवी। मैंने टीवी बंद किया। आई क्लोज टीवी। मैंने टीवी देखा। आई वॉच टीवी। तो ये सारे में टीवी का पोजीशन कहाँ था? वर्ब के बाद कि वर्ब के पहले? बाद में। बच्चों ने टीवी स्टार्ट किया। चिल्ड्रन स्टार्टेड टीवी। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ क्या लिखा है? चिल्ड्रन टीवी स्टार्टेड। मतलब कम से कम इतना तो बोल दीजिए कि इसका ये तो मतलब नहीं हो कि बच्चों ने टीवी स्टार्ट किया, क्योंकि उसके लिए क्या सेंटेंस होना चाहिए? बच्चों ने टीवी स्टार्ट किया का हिंदी इंग्लिश क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन स्टार्टेड टीवी। यहाँ लिखा नहीं है ना, वो चीज नहीं लिखा ना। नहीं लिखा है। तो ये तो उसकी हिंदी नहीं होगी ना मैम। बात होगी। खत्म, बाकी हो देख लेंगे। ओके, द डोर ओपनड। संयुक्ता मैम, द डोर ओपनड हिंदी? दरवाजा खुला। Okay. Right? When the class finished, I started cooking.
जब क्लास खत्म हुआ तब मैंने खाना बनाना शुरू किया। Very good. Every day the class finished at 5:30. एवरीडे मतलब डेली क्लास 5:30 में फिनिश होता है। Every day class finished. एवरीडे फिनिश्ड मतलब खत्म होना है या आपकी। वो तो सही है, लेकिन कुछ और छूट रहा है आपके दिमाग से। Every day class finished at 5:30. एवरीडे प्रतिदिन क्लास 5:30 बजे खत्म होता है। Finished. फिनिश मतलब कोई कंप्लीट होता है। Every day class finishes at 5:30. Every day class finishes at 5:30. एवरीडे क्लास फिनिश होता है 5:30 में ही। Repeat my sentence. फिनिश्ड हो जाता है। Ma'am, हाँ, every day class finishes at 5:30. एवरीडे क्लास 5:30 बजे फिनिश होता है। Very good. Every day class finished at 5:30. हो जाता है। फिनिश Ma'am, every day I go to school. मैं एवरीडे स्कूल जाती हूँ। Every day I went to school. मैं प्रतिदिन स्कूल गई। वेंट I see him every day. मैं रोज उसको देखता हूँ। I saw him every day. मैं उन्हें रोज देखा करता हूँ। Okay, ma'am. Sangeeta ma'am, what is the relation between see and saw? See is the present tense, saw is the past tense. बहुत अच्छे। अब मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आप सारे सवालों के सही जवाब देके गलत हिंदी निकालती है, तो मैं क्या ही बोलूंगा। Saw is the past tense. Okay, very good. मुझे ये भी बताने की जरूरत है कि saw is the past tense. And every day I saw him. I every day saw him. मैं आपको रोज देखता हूँ। नो कंफ्यूज हो गए हम। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता तो है, इतना बार पूछ रहे तो कंफ्यूज हो गए। हो जाता है, कोई बात नहीं। तो सॉ पास्ट टेंस है ना, तो इसकी हिंदी होगी मैं देखता था या मैंने देखा, ऐसा कुछ पास्ट की बात होगी ना। सॉ पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में ना हिंदी होनी चाहिए मैम, तो उसको हूं में तो नहीं एंड कर सकते ना। तो आई सॉ हिम एवरी डे, मैं उसको रोज देखता था। तो एट 4:30 चिल्ड्रंस टीवी स्टार्टेड। चिल्ड्रंस टीवी स्टार्ट होता बच नहीं, टीवी स्टार्ट होता था, चिल्ड्रंस टीवी स्टार्ट होता था, यानी कि चिल्ड्रंस टीवी स्टार्टेड। बच्चों के प्रोग्राम। बच्चों के प्रोग्राम चिल्ड्रंस टीवी स्टार्टेड। ओके, there was a question now, what time did programs begin? प्रोग्राम कब शुरू होता था? At 4:30 when children's TV started, जब बच्चों की टीवी स्टार्ट होती थी, यानी बच्चों का प्रोग्राम शुरू होता था। कितने बजे? 4:30। हाँ, प्रोग्राम्स कब शुरू होते थे? जब 4:30 शुरू होते थे, जब चिल्ड्रंस टीवी स्टार्टेड। जब चिल्ड्रंस टीवी स्टार्ट होता था, चिल्ड्रंस टीवी का नाम था प्रोग्राम का, अब वो आता था 4:30 बजे, और उसी से शुरू होता था प्रोग्राम। उसके पहले टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं होता था। There were no programs all day long, okay? Nothing in the morning and nothing in the afternoon. अरे बाबा, ऐसा गंदा। What time did programs begin? फिर प्रोग्राम चलता था कब, कितने बजे शुरू होता था? At 4:30 when children's TV started. Okay, when children's TV started, जब बच्चों की टीवी स्टार्ट होती थी, है ना? Children's TV is the name of the program because the question was what time did programs begin? At 4:30. When children's TV started. Okay. आप कितने बजे उठते थे? 6 बजे उठते थे जब मेरा अलार्म बजता था। What time did you wake up? What time did you wake up? At 6 o'clock when my alarm rang. बात समझ आ रही है दोस्तों? Yes. What time did programs begin? At 4:30 when children's TV started. There were some great programs for us children, I can tell you. There were some great programs for us children, I can tell you. Okay. There were some great programs for us children.
back then उन दिनों there were some great programs for us children. मस्त प्रोग्राम रहता था. I can tell you is just an emphasizer. ये बस ऐसे ऐड करा है खाली उस बात को स्ट्रांगली बोलने के लिए. ये लड़का तुमको फंसाएगा, हम बता रहे हैं. ओके, तुम मुसीबत में आओगे, हम बता रहे हैं. एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे, हम बोल रहे हैं तुमको. ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं. व्हाई डू वी से दिस? टू मेक आवर स्टेटमेंट स्ट्रॉन्गर, राइट? बस बोल देते हैं ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, हम बता रहे हैं. ओके, लाइक दिस. तो आई कैन टेल यू इज दिस, हम बता रहे हैं वाले वही वाला बात है. ठीक है, दिस गर्ल इज नॉट गुड फॉर यू, आई कैन टेल यू. This girl is not good for you, I can tell you. Guys, you understand? One day you will be in trouble, I can tell you. बोल रहे हैं तुमको, एक दिन तुम मुसीबत में आओगे. ठीक है, तो आप कोई भी बात बोलते हो उसके बाद ऐसा बोलते हो ना, बता रहे हैं. ये लड़का तुमको फंसा देगा. This boy will get you in trouble. This boy will get you in trouble. I can tell you. This boy will get you in trouble. फंसा देगा के लिए मैंने कौन सी इंग्लिश यूज करी? एक वर्ड से हो गया. हाँ जी, ट्रबल. खाली ट्रबल बोला. गेट यू इन आदत ही नहीं है आपको पूरा फ्रेज समझने का. This boy will get you in trouble. अंशु क्या खा रही है? What are you eating? पिज्जा. I eat pizza. हाँ, पिज्जा इंग्लिश में पिज्जा, बाकी हिंदी में पिज्जा. तो देखो भाई, जब ज्यादा मूड खराब हो तो पिज्जा ऑर्डर करो और मस्ती से खाओ, मूड चीयर अप हो जाता है ऐसे भी, राइट? ओके. नो सर, मूड खराब नहीं था मेरा. आपने जो भी बोला सही बोला. हाँ, लेकिन ध्यान I देना, agree sir. Yeah. थोड़ा ध्यान देना बेटा, थोड़ा ध्यान देना. ओके, I can tell you this girl is very very sweet. I can tell you. क्या हुआ भाई? अरे बड़ी बढ़िया लड़की, हम बता रहे हैं तुमको. ठीक है, तो हम बता रहे हैं. काहे के लिए बोलते हो? अब काहे के लिए बोलते हो? बस उस बात को थोड़ा स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? तो आप इंग्लिश में क्या लगा देना? I can tell you. Okay, this pizza will make you fat, Anshu. I can tell you. Okay, this pizza will make you fat. I can tell you. पिज्जा सर तो मैं तब भी तो मोटी नहीं होती, मैं पतली ही हूँ. Do you want to become a little chubby? Yeah, I want sir. Okay. Well, I think some of the ladies here can lend a little bit. Yeah. Okay. Well, now the best thing would be to eat peanuts. Okay, every day 100 grams of peanuts in the daytime from the morning to evening. Just put 100 grams of peanuts. Peanuts are cheap, and they are full of healthy protein and healthy fat, guys. Okay, peanuts. बस बिना roast किए हुए, बस ऐसे ही peanuts. And I'm pretty sure you will definitely put on some good fat, you will put on some good weight. Okay, sir. All right. So, I can tell you, कुछ बोलो यार, कुछ बोलो. I can tell you, बोलो. आपको मेरे पर गर्व होगा सर, हम बता रहे हैं सर आपको मेरे पर गर्व होगा एक दिन. You will be proud of me, sir, one day. I can tell you, sir. Okay, I can tell you क्या करना है आपको? ऐड कर देना है, बस उसका कोई मकसद नहीं है, उस बात को स्ट्रॉन्ग करना जो आपने बोली है. ठीक है, बहुत पछताओगे तुम, बता दे रहे हैं तुमको. How will you say that? You will regret very badly. You will regret a lot. You will regret a lot. अगला लाइन जोड़. I can tell you. I can tell you. I can tell you. I can tell you. Regret a lot. You will be very regret. You will regret a lot. I can tell you. We had real stories in. We had real stories in those days. We had real stories in those days. हाँ, मस्त कहानी होता था उन दिनों. क्या प्रोग्राम आता था. Did your mum and dad give you pocket money? Did your mom and dad give you pocket money? Yes, but I worked for it. I cleaned the kitchen and did. I cleaned the kitchen, not a kitchen. I cleaned the kitchen and did the washing up.
did the washing up. We didn't have dishwashers in those days. We didn't have dishwashers in those days. Okay, okay. So, people, I'll see you all tomorrow at 5:30. Do you want the class at 5:30 tomorrow? It will be dark. It will be dark, right? It will be dark. So you can join Okay. them. What do you think? At That 5:30, is okay, sir. at 5:30 it is dark now. Renu is here or not? Renu didn't join today, I think. No, Renu didn't join today. So guys, Sir, please, your class is online. Then why are you saying dark or not? I'm just saying that I want to teach you guys. Okay? Will you be here at 5:30 tomorrow? Will you come? Yeah, Yes. I can daily. The class is on. Bye. And sorry, sir, again. Sorry, Don't sir. worry. Oh, Don't yeah, worry. sir. Tomorrow is Christmas Day. Yes, it is. So we will meet Yeah, now I got. tomorrow. We will meet at 5:30. Okay? Okay, sir.